بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل سدرا کی کہانیاں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ رات کا بھی پچھلا پہر تھا مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس گھر میں نہ جانے کیسے لوگ سکون کی نیند سو جایا کرتے تھے، مگر میں ان لوگوں کی طرح نہیں تھی۔ میں شروع سے ہی ہر بات کو زیادہ محسوس کرتی تھی، اور جب سے میں اس گھر میں آئی تھی مجھے تو بہت کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ پہلے تو میں نے دھیان نہ دیا کیونکہ میری نئی زندگی کی شروعات تھی، لیکن چند مہینے بعد جب میرے شوہر واپس دبئی چلے گئے تب میرے پاس فرصت ہی فرصت تھی، اور یہی فرصت میرے جی کا جنجال بن گئی۔ جب میں نے غور کیا تو میں نے محسوس کیا کہ اس گھر میں میرے نند کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہر کوئی اس کے حکم کا پابند ہے۔ وہ سفید لباس زیب تن کر کے ہمیشہ ایک چارپائی پر بیٹھی رہتی، دن بھر اس کے سامنے عورتوں کا مجمع لگا رہتا اور ہر کوئی اس سے دعا کرواتا۔ کبھی کبھی تو مرد حضرات بھی آ جاتے جو پردے میں رہ کر اپنا مسئلہ بیان کرتے۔ میری نند کا نام عارفہ تھا، میں ان کو عارفہ باجی کہا کرتی تھی۔ عارفہ باجی کافی چپ چپ رہا کرتی تھی اور ہر وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی، نہ جانے وہ اس میں کیا پڑھا کرتی تھی۔ وہ کافی عبادت گزار بندی تھی، مگر مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ جو بھی ان کے پاس آتا عارفہ باجی ان کو 3 تل کے لڈو دیتی، اس سے پہلے کہ میں کچھ پڑھ کر پھونکا کرتی، یہاں تک کہ ان کا تھوک بھی لگ جایا کرتا تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ لوگوں کی مراد بھی پوری ہو جاتی۔ یہ بات مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ آخر اس لڈو میں ایسا کیا راز ہے، مگر عارفہ بازی کسی کو اس کی بھنک بھی نہیں لگنے دیتی۔ وہ لڈو وہ اپنے کمرے میں اکیلے تیار کرتی اور ان کو اپنے کمرے میں ہی چھپا کر رکھتی تھی۔ میں نے 1-2 بار بہانے سے پوچھ لیا مگر انہوں نے تو جیسے سنا ہی نہ ہو۔ میں شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ اس کا تو صاف مطلب تھا کہ وہ کسی کو یہ بات نہیں بتانا چاہتی۔ کئی دنوں سے میں سو ہی نہ سکی تھی۔ نیند کیسے آ سکتی تھی مجھے جب تک اپنی نند کا میں راز نہ جان لیتی، مگر آج میں ان کا راز جان کر ہی رہوں گی۔ میں دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی تاکہ ان کے کمرے میں جا کر کچھ پتا کر سکوں۔ میرا تو خیال تھا کہ وہ سو چکی ہوں گی کیونکہ وہ جلدی سو جایا کرتی تھی، مگر جیسے ہی میں نے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ مجھے اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی نظر آئی، البتہ بتی بجھی ہوئی تھی۔ کون؟ وہ ایک دم سے بولی تو میرے پسینے چھوٹ گئے۔ باجی آپ جاگ رہی ہیں؟ میں نے جلدی سے بہانہ سوچنا شروع کیا۔ ہاں ہاں کلثوم، کیا ہوا؟ میں نے ان کے بیڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ یک مجھے بہانہ سوچ گیا۔ وہ باجی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ پلیز مجھ پر دم کر دیں تاکہ میرا درد کم ہو جائے۔ میں نے جلدی سے اپنا سر پکڑ لیا۔ انہوں نے ٹیبل لیمپ آن کیا۔ کلثوم، تم نے ٹیبلٹ نہیں لی کیا؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھنے لگی، مگر کچھ اثر نہیں ہوا۔ میں ان کے پاس بیٹھی۔ میری نظر سائڈ ٹیبل کے پاس رکھی اس گٹھڑی پر تھی جس سے وہ لڈو نکالا کرتی تھی۔ باجی نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ کے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگی۔ مجھ پر دم کرنے کے کچھ دیر بعد انہوں نے کہا، اب تو تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں ہے کلثوم۔ ان کی اس بات پر میں چونک گئی۔ ان کو کیسے علم ہوا؟ باجی، شاید آپ کا چہرہ دیکھ کر سکون آ گیا باجی۔ میں نے جلدی سے ان کا ہاتھ چوما اور ان کو گلے سے لگا لیا۔ ایک ہاتھ بڑھا کر بڑی پھرتی سے گٹھڑی میں سے لڈو نکال لیا۔ باجی نے مسکرا کر مجھے آرام کرنے کو کہا اور میں جلدی سے باہر نکل آئی۔ میرا تو مقصد پورا ہو چکا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے جلدی سے کمرہ لاک کیا اور اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی اور اپنی مٹھی میں سے وہ لڈو برآمد کیا، اور اب میں اسے توڑ کر دیکھنے لگی کہ اس کے اندر ایسا کیا ہے۔ لیکن جو کچھ میں نے دیکھا وہ بہت ہی حیران کن تھا۔ یہ سب کیا تھا آخر؟ میرا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے لڈو کو سائڈ ٹیبل پہ رکھا کیونکہ اس میں تو میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی اور ہمارا گزارا مشکل سے ہی ہوتا تھا۔ مجھے جگہ جگہ جاب کے لیے دھکے کھانے پڑتے تاکہ اپنے ابا اور بھائی کی کچھ مدد کر سکوں۔ میری 2 بڑی بہنیں شادی کے انتظار میں بوڑھی ہوتی جا رہی تھی، لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ بھائی کو اچھی جاب مل گئی اور 1 ماہ کے اندر ہی میری دونوں بہنوں کا اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا۔ دونوں بھائی تھے اور ان کا نکاح ساتھ میں ہی ہونا تھا۔ لڑکے والے بہت اچھے تھے، انہوں نے جہیز لینے سے بھی انکار کر دیا۔ یہ اچانک ہی جیسے معجزہ ہو گیا تھا۔ دونوں بہنیں اپنے گھر کی ہو گئی اور ابا کو کسی سے قرض بھی نہ لینا پڑا کیونکہ نکاح سادگی سے ہوا تھا۔ جب دلہے والوں کو کوئی اعتراض نہ تھا تو دنیا والوں کے دکھاوے کے لیے ہم کیوں مشقت اٹھاتے۔ اب ہمارے گھر میں خوشحالی آ گئی تھی۔ بھائی نے گھر کو رنگ و روغن کروایا اور اماں کو اب میری فکر پڑ گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آج کل وہ بہت وظیفے کرتی تھی۔ پھر ایک دن اویس کا رشتہ آ گیا اور تو ہمارے تو جیسے بھاگ کھل گئے کیونکہ کہاں وہ اور کہاں ہم۔ وہ انتہائی امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے گھر دولت کی ریل پیل تھی۔ اویس بھی دبئی میں اپنا بزنس کرتے تھے
अम्मा अब्बा ने झट ये रिश्ता कबूल कर लिया और मेरी शादी खासी धूमधाम से हुई। अम्मा अब्बा को कोई खर्चा ना उठाना पड़ा। सब अवैस ने खुद किया था। मुझे मेरी नंद ने पसंद किया था। मैं किसी की शादी में गई तो उन्होंने मुझे देख लिया। शादी होते ही जैसे किसी मैं नई दुनिया में आ गई। नित नए कपड़े, बेशुमार बेबहा जेवरात और बड़ा सा कमरा जिसमें जरूरत की हर चीज मौजूद थी। और इतना प्यार करने वाला शोहर जो हर वक्त मेरे नाज नखरे उठाता। वो मुझे हनीमून पर ले गए और नारायण कागान और कई जगहों पर मैंने सैर की। उन्होंने कहा कि मेरा पासपोर्ट जब बन जाएगा तो वो मुझे दुबई भी ले जाएंगे। उनकी संगत पाकर मैं तो सब कुछ भुला बैठी थी। होश तो तब आया जब अचानक उन्होंने कहा कि अब उनको दुबई वापस जाना है। ये सुनते ही मैं उदास हो गई। मगर मैं क्या करती, वो घर पे भी तो नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने वादा किया कि वो जल्दी वापस आएंगे। न जाने मैंने किस दिल से उन्हें रुखसत किया और उनके जाते ही कमरे में मुंह छुपाकर रो दी। भला ये कैसी जिंदगी थी। शोहर एक माह में ही दूर जा रहा था, लेकिन अब मुझे उनका इंतजार करना था और अब मैं घर में ध्यान देने लगी थी। तभी एक दिन मेरे नन ने मुझे बुलवाया। आरफा बाजी कहाँ है? मैंने मुलाजमा से पूछा, जो कि बाजी का पैगाम लेकर आई थी। जी, वो पिछले सहन में बैठती है इस वक्त। मैं हैरत ज़दा-सी पिछले सहन की तरफ जाने लगी, क्योंकि आज से पहले मैं इस तरफ कभी न गई थी। मगर वहां का मंजर देखकर तो मेरे चौदह तबक रोशन हो गए। बाजी चारपाई पर बैठी थी और चारों तरफ खवातीन नीचे चटाई पर बैठी थी। एक औरत बता रही थी, बीबी जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है, दुआ करो कि उसे शिफा मिल जाए। उसके गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया है और हफ्ते डायलिसिस के लिए ले जाती हूँ। वो औरत रो पड़ी। मुझे बहुत अफसोस हुआ उसे परेशान देखकर। फिक्र न करो, तुम्हारा बेटा जल्दी सेहतयाब हो जाएगा। आरफा बाजी ने एक गठरी से तीन लड्डू निकाले, जो कि तिल के बने हुए थे, और अब वो उसमें कुछ पढ़ के दम करने लगी। काफी देर पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जोर से फूंक मारी। लड्डू यहाँ तक कि फूंक के साथ उनकी थूक भी लड्डू पर लग गई। 3 दिन तक ये लड्डू उसे खिला देना। उन्होंने वो लड्डू उस औरत की तरफ बढ़ा दिए, जिन्हें उसने बड़ी अकीदत से थाम लिया और उठकर चली गई। मैं सख्त हैरत में थी कि भला ये क्या माजरा था। मगर वहां तो हर कोई अपना दुख बताता जाता और जवाब में उसे दम किया हुआ लड्डू मिलता। वो खुशी खुशी चल पड़ती। मैं काफी देर तक ये ड्रामा देखती रही। अचानक उनकी नजर मुझ पे पड़ी। आओ आओ कुलसूम, ये लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे पुकारा और मैं आहिस्तगी से उनकी जानिब बढ़ने लगी। दुपट्टा अच्छे से सर पे जमाया। ये है मेरी भाभी अवैस की दुल्हन। वो मेरा तारुफ करवाने लगी। वहां पर कई औरतों ने मुझसे हाथ भी मिलाया और दुआएं दी। कुछ देर के बाद बाजी ने मुझे जाने को कहा और खुद उसी काम में मसरूफ हो गई। अब तो रोज ही ये तमाशा मैं देखती, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब कोई औरतें खुश खुश वापस आती कि उनकी मुराद पूरी हो गई है। भला इसमें ऐसा क्या था लड्डू में? सोच सोच कर मेरा दिमाग उलट जाता। आज जब मैंने सब देख लिया तो मैं परेशान हो चुकी थी। सुबह मैं देर से उठी क्योंकि फजर के बाद ही तो मेरी आंख लगी थी, लेकिन अब 11 बज रहे थे। या खुदा, इतनी देर हो गई, मैं इतनी देर तक सोती रही। मैं हाथ मुंह धोकर आई, मगर मुझे वहां बाजी नजर नहीं आई। नूरा, मैंने मुलाजमा को आवाज दी। जी बाजी। वो झट से बोतल के जिन की तरह हाजिर हुई। बाजी कहाँ है? आपको नहीं पता? वो हैरत से मुझे देख रही थी। मुझे कैसे पता होगा, मैं तो अभी उठी हूँ। मैंने माथे पे बल लाकर कहा। आजकल मेरा रवैया तल्ख होता जा रहा था। पता नहीं अवैस से दूरी थी। वो जी, आज के दिन वो रोजा रखती हैं। आज जुम्मे का दिन है। आज वो पूरा दिन कमरे से नहीं निकलेंगी। सहरी के बाद वो किसी से कलाम नहीं करती। अब वो मगरिब के बाद निकलेंगी। नूरा मजे लेकर बताने लगी। अच्छा, मेरा नाश्ता कमरे में लाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैंने दिल ही दिल में शुक्र किया कि बाजी को इल्म नहीं हुआ कि मैं आज इतनी देर से उठी। आज मैं मजे से कमरे में नाश्ता करूंगी। मैं मुस्कुराती हुई कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन जब मेरी नजर साइड टेबल पर रखे लड्डू पर पड़ी तो मैंने जल्दी से उसे छुपा दिया, कहीं नूरा न देख ले। कुछ देर नाश्ते से फारिग होकर मैंने अवैस को वीडियो कॉल मिलाई और उनसे बातें करने लगी। शाम होते ही मैं बाहर आ गई। बाजी अपने कमरे से बाहर निकली। उनका चेहरा बिल्कुल जर्द हो रहा था और वो काफी निढाल लग रही थी। उनके पैर भी मुझे सूजे हुए लगे, क्योंकि वो दीवार का सहारा लेकर चल रही थी। मैं घबराकर उनकी तरफ बढ़ी, मगर उन्होंने मुझे इशारे से दूर रहने को कहा और वो सोफे पर बैठ चुकी थी। नूरा ने उनको शरबत का गिलास दिया, जिससे उन्होंने एक घूंट भरा। उन्होंने वो शरबत फिर से जग में डाल दिया। उसकी इस हरकत पर मुझे शदीद गुस्सा आया, क्योंकि मेरा भी दिल कर रहा था वो शरबत पीने का। मगर अब तो नूरा ने झूठा शरबत डाल दिया था। मैं पैर पटक कर रह गई और देर देर में फैसला किया कि आज नूरा की क्लास लगाऊंगी। मैं बाजी के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। नूरा, बाजी ने हल्की सी आवाज में कहा। जी मेरी प्यारी बीबी।
नूरा वारी सदके जाए, कलसुम को ताज़ा शरबत बनाकर ला दो। उनकी बात पर नूरा किचन की तरफ जाने लगी, मगर मैं शदीद हैरत से बस उनका मुंह देख रही थी। और वो चेहरे पर तकलीफ के आसार लिए अब भी तस्बीह के दाने गिरा रही थी। और रात को जब मैं सोने लगी तो मेरे दरवाजे पर खटका हुआ। कौन? मैंने जल्दी से पूछा। आरफा। उनकी आवाज़ सुनकर मैं छलांग मारकर बिस्तर से उठी और दरवाजे तक पहुंची। बाजी, आप मुझे बुलवा लेती। मैंने उनको आने का रास्ता दिया। वो अब भी चप्पल नहीं पहने हुए थी। आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ गई। रात तुम जिस मकसद से मेरे कमरे में आई थी, मैं समझ गई थी। अचानक उनके मुंह से ये अल्फाज निकले तो मैं सुनकर गिरते गिरते बची। मेरा दिल पत्ते की तरह कांपने लगा। अल्लाह जाने वो क्या समझे। अब वो सीधी होकर मेरी तरफ देखने लगी। कलसूम, तुम जो जानना चाहती थी वो आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ। मैं सुन सी खड़ी उनका बस चेहरा देख रही थी। जबान खोलने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने बताना शुरू किया कि मैंने जब आँख खोली तो खुद को दादी की गोद में पाया, जो कि इंतहाई इबादत गुजार थी। मेरी माँ की औलाद न थी और उन्होंने दादी जान से दुआ कराई, अगर मुझे पहली औलाद हुई तो आपकी गोद में डाल दूंगी। और जब मैं पैदा हुई तो अम्मी ने मुझे दादी के हवाले कर दिया। मेरी माँ भी मेरे साथ ही रहती थी, मगर वो बस मुझे अपना दूध पिलाती थी। मेरी परवरिश दादी जान ने की थी। वो दिन रात इबादत में मसरूफ रहती और फिर मेरी परवरिश में उन्होंने मुझे 7 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज करवा दिया और मुझे दीनी और दुनियावी तालीम भी दी। उन्होंने मुझे हर तरह की फजूल चीज़ों से दूर रखा, यहाँ तक कि मैं भी उन्हीं की तरह अल्लाह ताला के करीब होती गई। मुझे महसूस हुआ कि दुनिया फ़ानी है और बका रब की ज़ात है। मेरा कभी दिल नहीं करता था कि मैं आम लड़कियों की तरह नए कपड़े बनाऊं या फैशन करूं। बस मुझे अल्लाह से लू लगाने में ही सुकून मिलता था और बस यही काफ़ी था मेरे लिए। मैं जवान हो गई तो बाबा ने मेरी शादी की बात की। मेरा दिल बहुत घबराने लगा। मैं दुनिया के झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी। इन्हीं दिनों दादी बीमार रहने लगी तो उन्होंने अपना एक ख़ास वजीफ़ा मुझे दिया और कहा कि ये बहुत भारी वजीफ़ा है, मगर इसे करने से हर मुराद पूरी होती है। दादी के इस दुनिया के जाते ही मुझ पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया। जो लोग दादी से दुआ करवाते थे और वो मुझसे करवाने आया करते थे, लेकिन मेरी दुआ में वो असर न था। फिर एक दिन मैंने वो वजीफ़ा किया, एक औरत के लिए जो बहुत बीमार थी और उसके छोटे छोटे बच्चे थे। वो रो रो कर मुझे कहती रही कि मैं मरना नहीं चाहती। और उस रात मैंने वो वजीफ़ा किया और ये लड्डू बनाए। फिर मैंने उसे दिए। मेरी हैरत की इंतहा न रही कि कुछ ही दिनों में वो चंकी बली हो गई। उस दिन के बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं दुखी इंसानियत की खिदमत करूंगी, चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए। दादी ने मुझे ये करने से रोका था और कहा था कि कभी कभी करना, मगर अब मैं हर जुमेरात और जुम्मे को यह वजीफा करती हूँ, जिसके लिए मुझे सहरी के बाद खड़े होना पड़ता है जब तक मगरिब की अजान नहीं हो जाती। मैं बैठ नहीं सकती और इसी वजह से मेरे पैर सूज जाते हैं, मगर मैं जिनके लिए ये सब करती हूँ उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। और ये जो लड्डू कल रात तुम मेरे कमरे से लाई थी, इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये सब दुनिया को दिखाने को है, वरना सारी मेहनत तो मैं दुआ में करती हूँ। और वो मेरी तरफ देख रही थी और मैं शर्मिंदगी से नजरें झुकाए हुए खड़ी थी। तुम्हारी माँ भी एक दिन मेरे पास आई थी, मैंने उनके लिए भी दुआ की थी और तुम्हारे लिए अपने अवैस का रिश्ता दिया, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत परेशान थी। मैं ना सिर्फ दुआ करती हूँ बल्कि माली मदद भी कर दिया करती हूँ। लेकिन कसूम, मौत तो कभी नहीं टिका करती। कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनकी मुराद पूरी नहीं हुई, मगर मैं अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस नहीं होती, क्योंकि वो जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। जो वो जानता है वो हम तो नहीं जानते। ये सब मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही कलसूम कि तुम मेरी वाह वाह करो, बल्कि इसलिए बता रही हूँ कि तुम अब इस घर की फर्द हो और तुम्हारा हक बनता है ये जानना। अगर तुम शक में मुब्तला ना होती तो शायद मैं तुम्हें कुछ ना बताती, मगर मैं नहीं चाहती कि एक छत तले तुम मुझसे मुतनफ़िर रहो। बस यही कहानी है इन सब के बीच जिसे तुम ड्रामा समझती हो। वो मुस्कुरा रही थी और उनका नूरानी चेहरा दमक रहा था। मुझे लगा ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। जो मेरी मोहसिन थी, जिन्होंने मेरी माँ का मुश्किल में साथ दिया, मैं उन्हें ही गलत समझ रही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उनके कदमों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दे बाजी। मैंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने जल्दी से मुझे उठाया। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ कलसूम, बल्कि मुझे तो खुशी हो रही है कि मैंने अपने भाई के लिए जिस लड़की का इंतखाब किया वो काफ़ी अक्लमंद है। अब की बार वो हंसी थी तो रोते रोते मैं भी हंस पड़ी। आप मेरा मजाक उड़ाती हैं? मैंने आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ बिल्कुल। बाजी ने मुझे गले से लगा लिया। हम दोनों की गलतफहमी दूर हो चुकी थी। आज इस बात को 10 साल बीत चुके हैं और इन 10 सालों में आरफा बाजी को कभी मैंने
बे सुकून होते नहीं देखा। बाकी दुआओं में बहुत असर होता है, मगर लोग दुआ नहीं करते और पीर और फकीरों के दर पे भटकते हैं। बाजी कहती है कि जो हमारे शहरक से भी ज्यादा करीब है, तो उससे दुआ करने की बजाय हम क्यों तावीज़ गंडों के चक्करों में पड़े रहते हैं। मैंने अवैस को मनाकर वापस बुला लिया और अब हम यहाँ ही रहेंगे साथ साथ। मैं बाजी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। मेरे 2 बच्चे हो गए हैं और अब बाजी को एक नया मशगला मिल चुका था। मेरे दोनों बच्चे हर वक्त उनसे लिपटे रहते और वो मेरे बच्चों के साथ खेलती। वो भी उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। आज भी लोग उनके पास आते हैं और उनसे दुआएं करवाते हैं और अब मैं भी उनके साथ लड्डू बनाने में मदद करती हूँ, क्योंकि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए।